Hello guys, today the topic of our discussion will be carbohydrates. We will be discussing briefly the definition, some characteristics, some major functions and briefly the classification of carbohydrates. So first of all, starting from the definition, carbohydrates can be defined as the polyhydroxy aldehydes or ketones. Now there are two conditions in this definition. Condition number one is that the compound should be a polyhydroxy compound. That means it must have multiple hydroxyl groups present in it. And condition number two is that the compound should have an aldehyde functional group which looks like this, or a ketone functional group which looks like this, right? When these two conditions are fulfilled, condition number one, polyhydroxy, and condition number two, functional group, aldehyde or ketone, then we can call that compound a carbohydrate. यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मैंने यहाँ पर वर्ड और लिखा है एंड नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि एक कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ एक ही कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड का, विच इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसरल्डिहाइड इज अ कार्बोहाइड्रेट हैविंग 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3. The functional group aldehyde is present at carbon number 1. कार्बन नंबर 1 आपका यहाँ पर aldehyde functional group present है. The carbon number 2 you have hydroxyl group on this side and you also have hydroxyl group on carbon number 3 and on this side you have hydrogens. यहाँ पर आपने इस चीज़ को देखना है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो आपने कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं वो पूरे करने हैं। आप काउंट कर सकते हैं, दिस कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स, दिस कार्बन 1 2 3 4, दिस कार्बन 1 2 3 4। सो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। अब वापस आ जाए यहाँ पर डेफिनेशन पर, उसकी दोनों कंडीशंस पर। कंडीशन नंबर 1 ये थी कि द कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी अ पॉलीहाइड्रोक्सी। उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए या मल्टीपल हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होने चाहिए। अब आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखें, क्या आपको एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं? यस, this is hydroxyl group number 1 and this is hydroxyl group number 2. That means you have multiple hydroxyl groups, so the condition number 1 is satisfied. Condition number 2 is that the compound must be an aldehyde containing compound or a ketone containing compound. तो क्या आपको यहाँ पर aldehyde और ketone में से कोई एक ग्रुप नजर आ रहा है? Yes, at carbon number 1 you can see the aldehyde group present. और कार्बोहाइड्रेट्स में ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो aldehyde ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है, जबकि कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट होता है। Now this compound is fulfilling both the conditions present in the definition. It is also a polyhydroxy compound and it also contains an aldehyde group, so we can call it as a carbohydrate. और इसका नाम जो है वो है आपके पास ग्लाइसर aldehyde, which is the simplest carbohydrate, right? Moving on from the definition, we will discuss now the characteristics of carbohydrate. So characteristic number 1, most abundant biopolymer in nature. Carbohydrates सबसे ज़्यादा abundant biopolymers हैं in nature. First of all, what is a biopolymer? Biopolymer इस लफ्ज़ के दो हिस्से हैं, bio and polymer. Bio meaning inside the living system and polymer is such a compound which is made up of small monomer molecules. So biopolymers are such compounds which are made up of small monomer molecules and are present inside the living system. And basically we have 4 biopolymers which we discuss in biochemistry: carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. इन चारों में से जो नेचर में सबसे अबंडेंट हैं वो हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज दीज आर लिटरली प्रेजेंट इन एवरीथिंग। फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, सीरियल्स ले लें, हर चीज़ में आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं। हमारी डाइट जो है उसमें भी मोस्टली हम कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम करते हैं। मेजॉरिटी जो हमारा फूड स्टफ है जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। तो नेचर में जो सबसे अबंडेंट बायोपॉलीमर है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो बायोपॉलीमर जो सबसे अबंडेंट है, दोज आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी का 50% ड्राई वेट बनाते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे अबंडेंट बायोपॉलीमर है दैट इज प्रोटीन, और नेचर में जो सबसे अबंडेंट बायोपॉलीमर है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स किस चीज को कहते हैं? हाइड्रेट्स किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन कर रहे हो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, एंड एज द नेम इम्प्लाइज कार्बोहाइड्रेट्स, सो दिस मीन्स यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के साथ। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वाटर के जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी रेशो 2:1 है, विच इज द सेम रेशो एज दैट ऑफ वाटर। वाटर के अंदर भी आपको 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन देखने को मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ही रेशो आपको देखने को मिलेगी। दैट मीन्स फॉर एवरी 5 हाइड्रोजन्स यू विल हैव 2.5 ऑक्सीजन्स। या फिर मैं इस तरह से कह सकता हूं कि अगर ऑक्सीजन आपके पास 5 होंगे तो हाइड्रोजन आपके पास 10 होंगे, ऑक्सीजन आपके पास 10 होंगे तो हाइड्रोजन आपके पास 20 होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 2:1 होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेजरली प्रेजेंट होते हैं 90%। इसके अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। आगे जाके हम पॉलीसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स जब देखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना है कि कार्बोहाइड्रेट्स are called the hydrates of carbon because inside their structure the water constituents hydrogen and oxygen are chemically linked with carbon, so that's why these are called as hydrates of carbon. Point number 3 is of empirical formula. Carbohydrates follow the empirical formula CH2ON where N is greater than equal to 3. That means N can be equal to 3 or N can be greater than 3. n कैन नॉट बी लेस देन 3। यहाँ पर n 3 के इक्वल हो सकता है या 3 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप n यहाँ पर पुट करें इज इक्वल टू 3, दिस विल बिकम C3H6O3। इफ़ यू पुट n here 4, दिस विल बिकम C4H8O4, राइट। So you cannot find a carbohydrate which will have carbon atoms less than 3. For a compound to be called as a carbohydrate, it must have at least 3 कार्बन एटम्स, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ग्लाइसरैल्डिहाइड का, और मैंने आपको बताया कि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें 3 कार्बन एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिलेगा जो कि 3 कार्बन एटम से लेस कार्बन एटम्स रखता हो, यानी जिसमें 2 या 1 कार्बन एटम हो। बट इज दिस ऑलवेज ट्रू? इज दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसकी हम एक केस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कार्बोहाइड्रेट जिसका नेम है डीऑक्सी राइबोज। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ डीऑक्सी राइबोज इज C5H10 एंड O शुड बी 5। O यहाँ पर 5 होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा हाफ होते हैं हाइड्रोजन के, बट O इज नॉट 5 हेयर, O इज 4, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द DNA। DNA के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये एक शुगर है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी चीज़ ये कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला है C5H10O4। तो आप यहाँ पर देखें, क्या ये एम्पिरिकल फार्मूला फॉलो हो रहा है यहाँ पर? नहीं, ये एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो वो नहीं आ रही जो कार्बोहाइड्रेट्स में होनी चाहिए। सो वी कैन नॉट से दैट दिस एम्पिरिकल फार्मूला इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है एक कार्बोहाइड्रेट की जो कि कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस एम्पिरिकल फार्मूला को फॉलो नहीं करता। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक और कंपाउंड की, विच इज लैक्टिक एसिड। Lactic acid, we can draw it like this. This is a carboxylic group.
this right here is carbon number 2 and this right here is carbon number 3 in the form of CH3. यहाँ पर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन देखने को मिलता है. दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड, राइट. अगर आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो आपको कार्बन कितने देखने को मिलेंगे? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3. दैट मीन्स यू हैव 3 कार्बन एटम्स. इफ यू काउंट हाइड्रोजन्स 3, 4, 5 एंड 6, यू हैव 6 हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन आपके पास 3 ऑक्सीजन्स हैं. ठीक है, O3, राइट. सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड. ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या कार्बोहाइड्रेट्स के एम्पिरिकल फार्मूला को फॉलो कर रहा है? यस, C3H6O3. अगर यहाँ भी आप 3 पुट करें तो C3H6O3 बनता है. दैट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फार्मूला को फॉलो कर रहा है. बट इज दिस अ कार्बोहाइड्रेट? क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है? नो, बिकॉज यू कैन सी दैट हेयर इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट. ठीक है, दैट मीन्स इट इज एन एसिड और इसका नाम है लैक्टिक एसिड. सो यू कैन सी दैट दिस इज अ कंपाउंड विच इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज फॉलोइंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और इससे पहले आपने देखा कि एक कार्बोहाइड्रेट था डीऑक्सीराइबोस, जो कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा था लेकिन कार्बोहाइड्रेट था. दैट मीन्स दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, तो इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनानी पड़ी, क्योंकि ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनसे आप उसको डिफाइन, कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्वियसली स्वीट इन टेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज शुगर्स. ठीक है, उनका टेस्ट स्वीट आता है और इन जनरल वाटर सॉल्युबल होते हैं. लेकिन यहाँ पर आप कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी बेस पे आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर सकें. मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर इन नेचर, ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि आप इसको डेफिनेशन कंसिडर कर सकें. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू बी कंसिडर्ड एज अ डेफिनेशन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा काफ़ी सारी ऐसे आपको कंपाउंड्स मिल जाते हैं जो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो होंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे. एम्पिरिकल फार्मूला, इसको भी आप डेफिनेशन के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि एम्पिरिकल फार्मूला फॉलो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इसको फॉलो नहीं भी कर सकते. तो दैट इज़ वाई वी नीडेड अ स्पेसिफिक डेफिनेशन जिसकी बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिसाइसली डिफाइन कर सकें. तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स or the substances which produce them on hydrolysis. So this is how can you define carbohydrates, and these are some general characteristics of carbohydrates. Next we will discuss the functions of carbohydrates. Carbohydrates can have many functions but the 4 major ones are listed here. ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. कार्बोहाइड्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू एनर्जी एंड दे गिव यू 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी, राइट. Proteins also give you round about the same energy, that is 4.1 or 4.2 kilocalories per gram, and lipids give you 9 kilocalories per gram. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम देते हैं, प्रोटीन्स भी लगभग 4.1 4.2 इतने ही एनर्जी देते हैं, और लिपिड्स जो हैं वो आपको 9 किलो कैलोरीज पर एनर्जी देते हैं. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो ज़्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं वो आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं. आपके माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट है और स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है स्लाइवरी एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज भी उसको कहते हैं. चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके माउथ में ही प्रेजेंट है, तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं आपको उनके माउथ में ही उनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है और आपको स्वीट टेस्ट आना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज फास्टर इन कंपैरिजन टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बिकॉज देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड योर माउथ, जबकि प्रोटीन्स और लिपिड्स की डाइजेशन जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में जाकर शुरू होती है, तो उनकी डाइजेशन स्लो होती है. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको फौरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनकी डाइजेशन फास्ट है. और चूंकि लिपिड्स आपको मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 9 किलो कैलोरीज पर मोल, लेकिन उनकी डाइजेशन स्लो है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स.
अच्छा जी, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन सम फूड, सम ब्रेड और सम राइस, आपने खाना खाया, ठीक है, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ऑब्वियसली। अगर आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, एंड स्टार्च राइट हेयर इज़ अ पॉलीसेक्राइड विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो आप स्टार्च खा रहे हैं रोटी की शक्ल में, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगी और वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ग्लूकोज जाएगा आपकी ब्लड स्ट्रीम में। अब एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब तक ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। एनर्जी वो आपको तब प्रोवाइड करेगा जब वो ब्लड स्ट्रीम से जाएगा कहाँ पर? सेल के अंदर। तो सेल के ऊपर इन ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंसुलिन के ज़रिए एक्टिवेट होते हैं। जब आपका ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो आपका ब्रेन पेनक्रियास को मैसेज सेंड करता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है, इसका कुछ करो। तो पेनक्रियास क्या करेगा? पेनक्रियास अपने बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन सेल्स के ऊपर जो ग्लूकोज रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाकर बाइंड करता है, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर्स ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो सकता है। जब तक ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट था वो किसी काम का नहीं था, आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ही हो रहा था। जब वो सेल के अंदर आना शुरू होगा तो ब्लड के अंदर से सेल तक आएगा ग्लूकोज। इसी वजह से इंसुलिन को कहते हैं कि वो आपका ब्लड शुगर लेवल कम करता है। कहाँ से कम करता है? ब्लड ना ग्लूकोज लेवल कम करता है। कहाँ से कम करता है? ब्लड से। इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को कम करके उसको सेल में भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। यह है फंक्शन ऑफ इंसुलिन, राइट। तो जब एक दफ़ा ग्लूकोज आपका आ गया ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर, तो नेक्स्ट उसने जाना है एक केमिकल पाथवे जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस इज़ बेसिकली, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में और एफएससी में, इट इज़ अ 10 स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ पाथवे। इसके अंदर 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज से, जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक होना शुरू होता है पहले स्टेप में, और जो आखिरी इसका 10th स्टेप होता है उसमें इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको देखने को मिलता है पायरूवेट, और उसके साथ साथ आपको ATPs मिलते हैं। तो व्हाट इज ATP? ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सिमिलरली ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था आपके पास? पायरूवेट। पायरूवेट कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में स्टार्ट करता है TCA साइकिल, और TCA साइकिल से भी आपको ATPs मिलते हैं, ठीक है। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के लेक्चर्स में। बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ग्लूकोज व्हेन एंटर्स इनटू द वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल कैन प्रोवाइड यू ATP, और ATP क्या है? एनर्जी ही तो है। सो दिस इज हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP प्रोडक्शन, राइट। फंक्शन नंबर 2, carbohydrates can be used as the precursors for fats and amino acids, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स और अमाइनो एसिड्स के प्रिकर्सर्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। आपकी बॉडी में ये एबिलिटी होती है कि आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट आप फूड की फॉर्म में इनटेक करते हैं उसको सबसे पहले यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो पहला और प्राइम मोस्ट फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोडक्शन, जिसके लिए आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी कोशिश करती है कि उन कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी में किसी तरह से स्टोर कर दिया जाए ताकि बाद में उनको यूज़ किया जा सके, या उसको किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं वो बेसिकली सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो कि आपके लिवर और मसल्स में स्टोर होता है, और उसके बाद भी जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में बचता है वो फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट्स में और अमाइनो एसिड्स में। ये भी मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक है, इसको हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ सकते हैं कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट से आप फैट्स और अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ थोड़ा सा फैट्स में कन्वर्जन का। दिस इज ग्लूकोज, आपने खाना खाया, ठीक है,
उस खाने के ज़रिए, उस मील जो आपने लिया उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिले और उन कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए आपको ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज एंटर हुआ ग्लाइकोलिसिस में, जिसके 10 स्टेप्स होते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल स्टेप लिख रहा हूँ क्योंकि पूरे 10 स्टेप्स जो है यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है इस टाइम। तो ग्लूकोज व्हेन एंटर्स इनटू द ग्लाइकोलिसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट। पाइरूवेट आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। यहां पर आप लिख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज व्हेन एंटर्स इनटू द ग्लाइकोलिसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, और पाइरूवेट कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में बाय PDH कॉम्प्लेक्स, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको आप PDH कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये पाइरूवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना सकता है फैटी एसिड्स, राइट। यहाँ पर एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसका नाम है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। एसिटाइल कोएंजाइम ए उस बायोकेमिकल पाथवे में एंटर होता है, किसमें? बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स में, और बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स जो है उसका एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड्स। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से और एंड होता है फैटी एसिड्स पे, और जब एक दफ़ा फैटी एसिड्स बन जाएंगे तो ये आपकी बॉडी में जो अवेलेबल ग्लिसरॉल है उसके साथ मिलके क्या बना देंगे? फैट्स। सो इस तरह आपकी बॉडी ने जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट था ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर दिया फैट में इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, जिसके अंदर डिफरेंट पाथवेज आ जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस है, PDH कॉम्प्लेक्स के रिएक्शंस हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स है, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट से अमाइनो एसिड्स को भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म के टॉपिक हैं, उनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में, राइट। The third important function is of storage component, that carbohydrate also perform a storage function, ठीक है। For example starch and glycogen, यहाँ पर इसको रेस कर दें, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। Starch is the storage form of carbohydrates inside the plants. प्लांट्स जो हैं वो अपने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी जो है वो अपने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड योर लिवर एंड मसल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज फंक्शन भी हो गया, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का आपके पास है स्ट्रक्चरल फंक्शन, that carbohydrates can be used as structural components too, right? Structural components वो होते हैं जो कि आपको structural support या structural stability provide करते हैं, ठीक है। उसकी कुछ examples हैं आपके पास। cellulose, for example cellulose is a carbohydrate which is present inside the cell wall of plants. सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? आप लोग जानते हैं कि प्लांट सेल को स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और सेल वॉल के अंदर होता है ग्लूकोज। तो जो सेल वॉल का फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो एक्चुअली सेलुलोज की वजह से है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली काइटिन इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अ पॉलीसेकेराइड विच इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। तो काइटिन जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि इंसेक्ट्स का आउटर स्केलेटन बना रहा होता है, तो उनको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये दोनों ऐसी चीज़ें, ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स, एंड ग्लाइकोलिपिड्स व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद लिपिड्स। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी आप जानते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स जो कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी या फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस, 4 मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
ये एक्चुअली एक इन डिटेल कंप्लीट टॉपिक है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और वन बाय वन सारी क्लासेस को डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट अस जस्ट ब्रीफली क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स। उनकी सिर्फ हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है 3 क्लासेस में, विच आर मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, राइट। इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो जो आपकी फर्स्ट क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, दोज आर मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स या इनसे कोई छोटा यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स का हो नहीं सकता। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको मजीद ब्रेक नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। दीज आर वाटर सॉल्युबल, दीज आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। और काफ़ी सारे होते हैं मोनोसेक्राइड्स, लेकिन कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने यहाँ लिस्ट की हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, राइबोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट क्लास है आपके पास ओलिगोसेक्राइड्स। Oligosaccharides can be defined as the short chain condensation products of 2 to 10 monosaccharide units joined together by covalent linkages we call as glycosidic linkages. मैं रिपीट कर देता हूँ, ओलिगोसेक्राइड्स आर शॉर्ट चेन कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। छोटी चेन होती है इनकी और ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, शॉर्ट चेन कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। यानी इनके अंदर 2 मोनोसेक्राइड, अगर ये एक मोनोसेक्राइड यूनिट है तो ओलिगोसेक्राइड के अंदर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स भी हो सकते हैं और 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अप टू 10 हो सकते हैं। और ये आपस में जिस बॉन्ड के जरिए ज्वाइन टुगेदर हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड है जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अब जरा आप इसकी डेफिनेशन देखें। शॉर्ट चेन कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये एक शॉर्ट चेन है जो कि कंडेंसेशन से बनी है। शॉर्ट चेन कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स भी जुड़ सकते हैं, 3, 4 भी, अप टू 10, विच आर ज्वाइन टुगेदर बाय कोवलेंट लिंकेजेस वी कॉल एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस, ठीक है। तो oligosaccharides like monosaccharides are also water soluble, right? These are also sweet in taste, but these can be broken down into simpler units, and those simpler units are monosaccharides. These could not be broken down into further simpler units, but these can be broken down into further simpler units which are monosaccharides, right? Oligosaccharides are further classified as disaccharides, trisaccharides depending upon the number of monosaccharide units they have. अगर इनमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ज्वाइन टुगेदर होंगे तो उसको हम एक डाइसेक्राइड कहेंगे। अगर 3 मोनोसेक्राइड होंगे तो उसको ट्राइसेक्राइड कहेंगे, ठीक है। 4 होंगे तो उसको टेट्रासेक्राइड कहेंगे, एंड सो ऑन। तो ओलिगोसेक्राइड्स की भी आगे क्लासेस हैं और उसमें जो सबसे मेजरली डिस्कस्ड क्लास है, जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, वो आपके पास है डाइसेक्राइड्स की, जिसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ज्वाइन टुगेदर होते हैं एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, ठीक है। और डाइसेक्राइड्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स हैं वो आपके पास हैं माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये तीनों जो हैं डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल्स हैं और आप इनको ओलिगोसेक्राइड्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। माल्टोज फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं, हैज 2 ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सुक्रोज इज ऑल्सो अ डाइसेक्राइड यूनिट, इट कंटेन्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसके अंदर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में ज्वाइन टुगेदर होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और लैक्टोज जो है, इट इज ऑल्सो अ डाइसेक्राइड, इसके अंदर एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है आपस में ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स। इसमें सुक्रोज जो है वो कमर्शियली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका टेबल शुगर होता है, जो आप घरों में चीनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो सुक्रोज होता है, ठीक है। इसी तरह लैक्टोज इज मिल्क शुगर, आपके मिल्क के अंदर, दूध के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो लैक्टोज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स आर बेसिकली द लार्ज कॉम्प्लेक्स carbohydrates which are made up of thousands of monosaccharide units joined together. इनके अंदर हज़ारों की तादाद में monosaccharide units आपस में joined together होते हैं
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के थ्रू। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो बेसिकली ब्रिक्स, सिंगल यूनिट जैसे ईंटें होती हैं वो ईंटें हैं, आप उनको ब्रिक्स के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ईंटें आपस में कुछ ईंटें ना मिलाई जाएं तो आप एक क्लासरूम बना सकते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड्स आर बेसिकली क्लासरूम्स, और जब आप बहुत सारे क्लासरूम्स बना देते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं। आप एक पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं बहुत सारे क्लासरूम से। सो दिस इज़ यू कैन कंसिडर अ सिंगल यूनिट, अ सिंगल brick, and when many bricks combine they can form a classroom, and when many classrooms combine together they form a whole building or a whole institute or a whole university or school। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं unlike the above two classes these are not water soluble, ये दोनों water soluble थे, ये water soluble नहीं हैं। These are sweet in taste, these are not sweet in taste, इसलिए आप इनको तो शुगर्स कह सकते हैं, इनको आप शुगर्स नहीं कहते क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। लेकिन चूंकि 3 में से 2 क्लासेस जो हैं वो स्वीट टेस्ट देती हैं तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को इन जनरल हम शुगर्स कहते हैं। ठीक है, and these can obviously be broken down into simpler units, those are oligosaccharides, and they can be further broken down into monosaccharides। कुछ examples polysaccharides की आपके पास हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन तीनों के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है लेकिन हज़ारों की तादाद में। ठीक है, इसी तरह म्यूकोपोलीसेक्राइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। इन तमाम क्लासेस को, तीनों क्लासेस को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये दोनों स्वीट इन टेस्ट हैं, ये स्वीट इन टेस्ट नहीं है। ठीक है, ये दोनों ब्रोकन डाउन हो सकती हैं फर्दर और ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, और आप इनकी कुछ एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।